नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधो जय जगत्प्रिया महोदय जय सुयाण प्रभो तीर्थयारणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाना जय महप्पा महा वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिं अमरनराय मह्यं चरमतित्रयरम्यमसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत धर्मलाल। And on the border of the Pune city, we are running the Viralayam Jain Tirtha. In that Viralayam Jain Tirtha, one trust is Mahavir Research Foundation. And this trust is organizing different classes, and all are the global classes. So in these global classes, we are studying the different other subjects. Today we are going to start the Jain Karma Philosophy classes. And this Jain Karma Philosophy class is really the heart of the Jainism, heart of the whole Jainology. In Mahavir Research Foundation, other classes, so many different classes which is going on. So we have already set the 1 year course with the academic system. Every week will be taken the 2 classes in week, and near about the 1 year there will be the 100 and more classes for the one subject series. I will request you all, if you have that type of mentality to study the proper subject, this type of lecture series, it is not only to listen but to study. If the person, those who want to only listening, and if they will not do any type of study, they will not get any result. So in these classes, we will try to our best to learn each and everything in very depth and detail. Karma theory, philosophy of karma, theory of karma, whatever you can say, it is really the live knowledge, जिसको हम जीवंत विद्या बोलते हैं।
this type of karma philosophy, it will show you the mirror. Just like the ladies, those who are going in the front of the river mirror, they are looking their face and everything and then do correction in that. Same like that. If we will study the karma philosophy, this karma shastra, it is just like the mirror for each and every person. So what is the reason? What is the purpose behind to learn this karma philosophy? Due to this karma philosophy, we can know the other person, but simultaneously we can understand our own self. Who am I and what type of I am is. Now what type of correction we can do in our life? What type of correction is really required in our life? We can stop the bad karmas. We can start the good karmas. We can develop our own merits. We can reduce the past karmas. So these are the basic factors of the karmas. In this karma philosophy, we will learn so many things. In Jainism, even the God, even the Tirthankar, they are not supreme than the karma, but the karma is more supreme than the God, the Lord, you say. सभी तीर्थंकरों को भी कर्मक्षय ही करना पड़ा है। कर्मक्षय करके ही वो तीर्थंकर बने, नहीं तो नहीं बन सकते। And we will study the comparative study of different religions and different philosophy with the comparison of the Jain philosophy also. सबको मालूम है 6 कर्म ग्रंथों में फर्स्ट कर्म ग्रंथ, पहला कर्म ग्रंथ शायद किसी ने, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई लोगों ने सीखा भी होगा, कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन वो टेक्स्ट बुक जो है वो बेस रहेगी। अब उस टेक्स्ट बुक के बेस पर हम जो है अपनी तरफ से प्रयत्न करके और डिटेल करके आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश। So in this karma philosophy, the basic thing, what the karmas are, what type of karma is, how many karmas are there, why we want to learn this karma philosophy, why it is necessary for that. And you will surprise that such type of karma philosophy which is already in the Jainism, this type of karma theory or karma philosophy, not a single religion and not a single different school of the philosophy, they are not showing this, they are not believing this, they are not teaching. Now the first chapter मैं यहाँ पर जो लिखता हूँ और वो है यहाँ पर संसार। अब पहले ही मैं बोलूं इसके बजाय मैं अगर आपको पूछूं संसार का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर वर्ड मीनिंग, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस संसार, हम संसार किसको कहेंगे? साहब जी भवचक्र, चार गति में फरવું એનું નામ શું સર? जहाँ केवल दुख ही दुख है उसे संसार कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं। जहाँ जन्म मरण होता रहता है उसे संसार कहते हैं। જે સળગતું હોય, જે હંમેશ માટે બદલાતું હોય, એને સંસાર કહેવામાં આવે છે। जो हमारे भीतर में बसा हुआ है, राग द्वेष, जिसके कारण भव चक्र चल रहा है, वो संसार। સાહેબ जी જ્યાં જન્મ મરણનું ચક્ર એક સરખું ચાલુ હોય તે સંસાર કહેવાય। Thank you everyone. जी अब हम जो है थोड़ी स्टडी करेंगे। आप लोगों ने प्रयत्न किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको।
अब प्रयत्न तो आपने किया, लेकिन हमको इसमें से जो प्रचलित अर्थ है, हमको दोनों को इसमें से निकालना तो पड़ेगा। एक मीनिंग तो ऐसा होता है जो संसार के जो बोलते हैं कि लोक क्षेत्र, जगत का स्वरूप, यू कैन से द होल यूनिवर्स, यू कैन से द होल कॉस्मोस, वो संसार का जो स्थिर स्थायी स्वरूप है, द्रव्यात्मक संसार कैसा है। अब उसको संसार कहना, जगत कहना, लोक स्वरूप कहना, इन अदर रिलीजन दे आर सेइंग एज ए ब्रह्मांड। हिंदू धर्म के अंदर किसी ने, उन्होंने इसको ब्रह्मांड का नाम दिया है। अब यहाँ पर ये अगर इसका स्वरूप जैन धर्म की दृष्टि से हम देखने जाए तो ये स्वरूप आपको इस प्रकार का जो है वो मिलेगा। तो ये हमको जैसा स्वरूप मिलेगा तो इसे स्थिर स्थायी स्वरूप है। द्रव्यात्मक जगत कैसा होता है, सब्सटेंशियल द होल यूनिवर्स इज व्हाट टाइप ऑफ दैट होल यूनिवर्स। तो हम जब इसकी बात करेंगे तो वो ये है। और दूसरा यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये संसार का स्वरूप यहाँ पर कैसा है। हाँ जी, अब आप डायग्राम देख करके दो में से बरोबर विचार करिए और दोनों डायग्राम के हिसाब से आपको स्टडी करके ख्याल आना चाहिए। अब आप ये सोचकर की डेफिनेशन दीजिए इसकी कि आप कैसे इसको समझेंगे। એ જગતમાં તિર્યંશ, નારક, મનુષ્ય અને દેવની ગતિમાં જ જે પરિભ્રમણ કરે છે તેને સંસાર કહે છે। સાહેબજી, પહેલી ડાયાગ્રામ 14 રાજલોક બતાડે છે અને બીજા ડાયાગ્રામમાં, હા સાહેબજી, એ 14 રાજલોક છે અને બીજા ડાયાગ્રામમાં આપણને નરક, તિર્યંશ, મનુષ્ય ગતિ અને મોક્ષ ગતિ બતાડે છે। अरे मोक्ष गति कहाँ से आ गई? 4 गति 84 लाख योनि में जीव परिभ्रमण करता रहता है, उसको आपने दर्शाया है दूसरे चित्र में। एक और जोड़ दो तो आपको फर्स्ट प्राइज आ जाएगा। थोड़ा सा और जोड़ना है। अनंत काल से जीव 4 गति में परिभ्रमण करता रहता है। 84 लाख योनि में जीव परिभ्रमण करता रहता है, उसको संसार कहते हैं। चलो वेरी गुड, आज इनका फर्स्ट प्राइज आया राजेश भाई परीख का, धन्यवाद। चलो अब ये तो आपने फर्स्ट जो हम देख रहे थे, दिस इज द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ द होल लोक, वी कैन से इन डिफरेंट वर्ड्स, ब्रह्मांड और जो भी कुछ आज कहिए। लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है संसार का, वो इस सब्जेक्ट पर चलने वाला है। अप टू 1 year you have to understand only this diagram, so you will study about this. Now we are going to find out what is the reason behind that. For this there is no reason, this type of the whole universe which is already existing, and for that existence there is no reason, you see, but this is just continue the going on, you see, so there are the some reason behind that. अब उसके लिए हमको स्टडी करनी पड़ेगी, उसको हम समझेंगे। तो ये अगर डेफिनेशन अगर हमको बनानी है इसके लिए, तो अब जिस तरह से जैसा यहाँ पर इन्होंने राजेश भाई परीख साहब ने कहा, वो डेफिनेशन हमको पहले लिखनी है। तो ये आपको सोचना है कि 84 लाख जीव योनि के अंदर और 4 गति के अंदर जो परिभ्रमण है, तो वो परिभ्रमण किस रूप में है? जन्म मरण करते हुए जो परिभ्रमण है। हाँ, अब ये जो है ये पूरा विषय आपको समझ में आ गया। अब मैं फिर से बोलता हूं, फिर आपको बोलना जरूरी है। चारों गतियों में 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए परिभ्रमण करता ही जाए, उसका नाम संसार है।
Now whoever wants to answer, please raise your hand. Okay, सुनीता आचार्य जी। हाँ, 84 लाख जीव योनि में चारों गति में जन्म मरण करते हुए परिभ्रमण करते हैं, उसको संसार कहते हैं। अब एक आधी मिनट आपको और मिलेगी, लेकिन सेंटेंस करेक्ट करके फिर आप सेट करना। अच्छा, बाद में आफ्टर 2 मिनट। ओके, अक्षिता जी। 4 ગતિ 84 લાખ જીવા યોની, એમાં જન્મ મરણ કરતા કરતા એમાં પરિભ્રમણ કરતા કરતા જે કરીએ છે એને સંસાર કહેવામાં આવે છે। चलो, आपको भी करेक्शन करने का चांस मिल रहा है। कौन से शब्द आप मिस कर रहे हो, कौन से शब्दों के साथ सेंटेंस प्रॉपर बनाना है। आगे ललिता जी जैन। अनंत काल में जीव चारों गति में परिभ्रमण करते हुए 84 लाख योनि में जन्म मरण करते हुए परिभ्रमण करते हुए जन्म मरण करते हुए उसे संसार कहते हैं। चलो, आपको भी प्राइज अभी नहीं मिल सकता है। और कोई? सुनील भाई बखाड़िया। साहेब जी, जीव 84 लाख योनिમાં સતત જન્મ અને મરણના પરિભ્રમણમાં 4 ગતિમાં ફરતો રહે તેને સંસાર કહેવાય। चलो, और कोई? अभी प्राइज लेना बाकी है। 4 गतियों में 84 लाख योनियों में जो जन्म मरण का परिभ्रमण करते रहते हैं उसे संसार कहते हैं। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब ये आगे देखिए, आप पिक्चर में भी देखिए, ये 4 डायरेक्शन जो है इट इज फॉर 4 गति, और ये 84 लाख योनियों के अंदर। और तीसरा शब्द है जन्म और मरण, चौथा शब्द है परिभ्रमण। अब ये जो संसार का चक्र जो चल रहा है इसको हमको समझना है, और ये हमारा डायग्राम जो है 1 बरस तक चलता ही रहेगा साहब। यही डायग्राम आपको 1 बरस तक समझना है। अब इन सब के लिए आपको शब्द बरोबर है, ये है तो ये भी जाकर के नंबर 1। अब इसको भी कर्म से समझना पड़ेगा। ये आपको समझना है नंबर 2, ये भी कर्म की थ्योरी से समझना पड़ेगा। नंबर 3, ये जो चल रहा है जन्म मरण अकॉर्डिंग टू कर्म थ्योरी कैसे है वो हमको समझना पड़ेगा। फिर उसके कारण जो परिभ्रमण चल रहा है वो हमको कंपल्सरी समझना पड़ेगा। तो इसके साथ में हमारा बेसिक प्रिंसिपल आज क्या बन रहा है, कर्म के साथ अब इन दोनों के साथ थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लीजिए। कर्म है तो संसार है, या संसार है तो कर्म है? बोलो। Now whoever wants to answer, please raise your hand. Okay, मनीषा वकील जी। हाँ, कर्म है तो संसार है। चलो नेक्स्ट। ओके, सोनाली बेन वोरा। कर्म है तो संसार है तो कर्म है। बोथ साइड, दोनों तरफ है या कैसे है? बबीता जी चोपड़ा। साहेब जी, मथे नंदा में कर्म है तो संसार है, क्योंकि हम कहते हैं कि चारों घाती कर्म मुक्त हो जाए तो ही मुक्ति है। जब तक कर्म है तब तक संसार में जन्म मरण है। साहेब जी। टीना मेहता जी। आधा हुआ, आधा ही बोला आपने। मथे नंदा में साहिब जी, कर्म है तो संसार है तो कर्म है। How can you prove it? साहिब जी, संसार तो कर्मों के साथ ही चलेगा ना, जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो संसार खत्म हो जाएगा। भावना मोदी जी। मेरे हिसाब से कर्म है तो संसार है, बाकी जगत तो रहेगा।
Jagat is always there. It is only because I have karmas that I have samsara. अभी किसी को जगत में नहीं जाना है, अभी जब चल रहा है तो फिर उसी को समझिए, आप दूसरी तरफ जगत के स्वरूप में नहीं जाएंगे। नरेंद्र बोरा जी, कर्म है तो संसार है, संसार है तो कर्म, कर्म नष्ट है तो सिद्ध गति है। हाँ साहब, थोड़ा प्रूव तो करिए ना। कर्म है तो संसार है, संसार है तो कर्म है, क्योंकि परिभ्रमण जब कर्म नहीं है तो परिभ्रमण भी नहीं है। दोनों को बोलने की कोशिश करिए कि कर्म और संसार का जो रिलेशन है वो कैसा है। साहिब जी, जब तक संसार में है तब ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं जिससे कर्म बनते रहते हैं, तो मन वचन और काया से कर्म बांधते रहते हैं जब तक हम संसार में हैं और ये जीव योनियों में भटक रहे हैं तब तक। चलिए, अब आपको क्या समझना है इन दोनों के साथ में, ये जब आप समझेंगे तब आपको इसके साथ ये ख्याल रखना है, द रीजन एंड इफेक्ट, द कॉजल रिलेशन एंड इफेक्ट। अगर हम कर्म को कारण बनाते हैं तब जाकर के संसार कार्य बनता है। आ गई बात समझ में? अब इधर देखिए, अगर हम संसार को कार्य बनाते हैं तब जाकर के कर्म कार्य बन जाएंगे। अब दोनों में से ये और ये, अब ये किसको समझ में आ रहा है? Whoever wants to answer, please raise your hand again. Okay, Kishore bhai, you can go first. कर्म और संसार का रिलेशनशिप कारण और कार्य जैसा है। जब कर्म कारण होता है तो उससे संसार, उसका परिणाम आता है संसार, और संसार होता है तो उसमें कार्य कर्म बनते रहते हैं। तो कार्य कारण का रिलेशनशिप कर्म और संसार के बीच में है, और फिर भी 50% खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, बस ज्यादा लंबा मत करिए, वेरी शॉर्ट, 1 से 2 सेंटेंस। हाँ सर, आगे जी। अगर कर्म को कारण माने तो उसका कार्य संसार हो जाता है, यानी कर्म इज द रीजन फॉर कॉजिंग संसार। लेकिन अगर और संसार अगर संसार को कर्म माने तो उसका कार्य हो जाता है कर्म। तो संसार इज द रीजन फॉर कॉजिंग कर्मास। You are not getting the prize. Okay. Asha Ben. हाँ, संसार का कारण कर्म है और कर्म का कारण संसार है। कर्म से कारण, दोनों एक दूसरे का कार्य और कारण है। चलिए, अब हम इसको एग्जाम्पल से और इसको बेसिक प्रिंसिपल से समझेंगे। तो पहली बात तो ये निश्चित हो गई कि जहाँ संसार है वहाँ कर्म से अनिवार्य रूप से है, और कर्म है तो संसार भी अनिवार्य रूप से है। वाइस वर्सा, बोथ द साइड। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो संसार ही तो बढ़ रहा है, संसार बढ़ रहा है तो फिर कर्म ही करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर संसार बढ़ेगा, फिर संसार बढ़ेगा, फिर कर्म करेंगे, फिर कर्म से ही बढ़ेगा। तो ये चक्कर चलता ही जाएगा। अब ये कर्म अनादि अनंत है कि संसार अनादि अनंत है? हाँ, विजय भाई मेहता। સાહેબ જી, કર્મ અને સંસાર બંને અનાદि અનંતથી છે, બંનેમાંથી there is no beginning to anyone. चलो, आप सबको चांस दीजिए ना, आप रिपीटेडली मत पूछिए, गिव द चांस टू ईच एंड एवरीवन। सर जी को जो, हाँ जी सर जी। श्रेया जी, दोनों ही इक्वल है, क्योंकि अगर कर्म बंद होगा तो संसार में है तो कर्म होगा ही, और अभवी तो कभी मोक्ष जाएंगे भी नहीं। तो ये कर्म और संसार चलता ही रहेगा। जो भवी है वो में भी मोक्ष चले जाएंगे, तो जो अभवी है वो तो इस संसार में ही रहेंगे।
तो कर्म तो चलता ही रहता है। इधर उधर मत जाइए। आप बहुत अच्छे पंडित हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बात सही आपको, लेकिन यहाँ जितना टॉपिक है उतना ही नहीं। चलिए अब हम इसके अंदर क्या बोलेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या था? कर्म अनादि अनंत परमानेंट है या संसार अनादि अनंत परमानेंट है? संसार के लिए महाराज, प्रत्येक आत्मा के लिए संसार अनादि अनंत है, किंतु कर्म अनादि अनंत नहीं है। आत्मा अपने कर्म को क्षय करके सिद्ध आत्म मोक्ष में जा सकती है। वैशाली दोषी जी। कर्म के कारण हमारा संसार अनंत हो जाता है। रसीला बेन। सब्जेक्ट संसार अनादि अनंत है और कर्म अनादि शांत है। कर्म खपा के मुक्त जा सकते हैं। जी बरोबर है। अब किस एंगल से आप ये आंसर लेते हो? यूनानिमसली फॉर द होल यूनिवर्स, अनंत जीवों की दृष्टि से देखो तो संसार भी अनादि अनंत है, कर्म भी अनादि अनंत। बट इंडिविजुअल for the individual person, if you will think from that angle, नए से, तो एक जीव के लिए, भवी जीव के लिए कर्म अनादि अनंत नहीं है, कर्म अनादि शांत हो जाएंगे। ऐसे भी जीव है जिनके लिए अभवी है तो वो उनके लिए कर्म अनादि अनंत हो जाएंगे। But the existence of both the things, I am talking about from that angle, the existence of the karma in the whole universe and the existence of this type of universe, sansar in the karma, both are simultaneously anadi ananta। सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, इस संसार का कभी अंत आएगा? तो सिमंदर स्वामी ना कह रहे कि इस संसार का अंत कभी नहीं आएगा। सिमंदर स्वामी को दूसरा प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, संसार के अंदर कभी ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन कर्म का ही अंत हो जाए, कोई कर्म बचे ही नहीं सा? तो भी सिमंदर स्वामी ने ना कहा कि ऐसा दिन भी नहीं आएगा, कर्म संसार में सदा काल रहेंगे ही रहेंगे। बहुत जीव मोक्ष में चले जाएंगे, उनका अपना अपना पर्सनल का संसार अंत हो जाएगा, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, existence of this type of sansar, existence of this type of karma, it will remain in all the time. It is permanent. कितला भगवान मोक्षे गया, 24 से 24 तीर्थंकर मोक्ष में गए। आज दिन भी कर्म सभी है और आज दिन भी संसार एज इट इज। कितने तीर्थंकर मोक्ष में चले गए? इसके उत्तर में आज भी हमको यही आंसर मिलने वाला है, अनंत आत्माएं मोक्ष में चली गई, अनंत आत्माएं मोक्ष में चली गई। और आज अनंत काल के बाद भी कर्म सभी एज इट इज है, संसार सबका ऐसा ही एज इट इज चल रहा है। अब मैं एक प्रश्न आगे का और पूछता हूँ, ध्यान रखना। अनंत बीते हुए भूतकाल में किसी ने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं है जो आज आप नया कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपको, आप कोई ऐसा टॉपिक बताओ, ऐसा क्वेश्चन, एक काम बताओ, अनंत बीते हुए भूतकाल में किसी ने नहीं किया, मैं ही अकेला कर रहा हूँ। हाँ, हर्षा जैन जी। हाँ साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो। सोनाली वोरा जी। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। जो अनंत काल में हुआ है वही हम लोग कर रहे हैं कर्म। यही बात ठिकाने पर बरोबर समझ में आ गया आपको कि जो अनंत अनंत काल के अंदर जो होता ही गया है, होता ही गया, होता ही रहा है, वही रिपीट होने वाला है, बिकॉज ऑफ कर्म। बिकॉज ऑफ कर्म का मतलब कारणीभूत निमित्त जो है वो कर्म है,
और रिजल्ट जो आएगा वो संसार है। जैसे कि हम सैटरडे संडे की क्लास में भी सीख रहे हैं मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व के कारण कोई आपको नरक नहीं मिल रही है, मिथ्यात्व के कारण जो है मात्र आपका संसार बढ़ रहा है। जब जब हम मिथ्यात्व की पाप प्रवृत्ति में मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बढ़ाते जाएंगे, क्या रिजल्ट आएगा? संसार बढ़ेगा। संसार बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ? 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए आपका भव भ्रमण बढ़ता जाएगा। हाँ, हिंसा का पाप ज्यादा है, वो नरक में जाकर के पनिशमेंट भोगेगा। ऐसे पाप 18 ही पाप है। अब कौन से पाप कैसे पाप, कौन से पाप कैसे पाप कोई करेगा उस पर डिपेंड है। लेकिन 18वां द लास्ट वन इज मिथ्यात्व। अब वो अगर मिथ्यात्व का पाप हमारा बढ़ चल रहा है, कर रहे हैं, तो संसार बढ़ता जाएगा। अब जिसने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बंद स्थिति बांध ली, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल कितना हुआ? कितना लंबा काल है, कितने वर्षों का काल हुआ? तो उसमें कितने भव करेगा वो? भव संसार उसके कितने बढ़ते जाएंगे? तो हमको ये सारी चीजें जो सीखनी है वो हमको इसमें इस सब्जेक्ट में सीखने मिलेगी। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जगत का स्वरूप है, कॉस्मोलॉजिकल वर्ल्ड जो है वो लोक और ब्रह्मांड के रूप में है, तो उसमें भौगोलिक खगोलिक स्टडी हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी एंड अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी वी विल डू इन दैट कॉस्मोलॉजिकल स्टडी इन दैट यूनिवर्सल फॉर्म यू सी। तो वो तो द्रव्यात्मक स्वरूप हो गया जगत का, उसमें धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश आएगा, आत्मा आएगी, पुद्गल आएंगे, सब आएंगे, और वो अपने आप में परमानेंट है। उसकी स्टडी हम अलग लेंगे दूसरे विषय में। वो अपने आप में परमानेंट है, न कोई धर्मास्तिकाय का नाश होता है, न कोई आकाश का नाश होता है, न आकाश लुप्त होता है, न आकाश का अभाव होता है, न आत्मा का नाश होता है, न एक परमाणु का भी नाश हो, कुछ भी नहीं होता। कोशिश करिए समझने की। लेकिन यहाँ ये जो हम चक्कर चला रहे हैं, ये चक्कर आज चारों गतियों में 84 लाख योनि में जन्म मरण करते करते अनंत काल तक जीव परिभ्रमण करते रहेंगे, ऐसा संसार अनादि अनंत है। बोलो कौन रिपीट करते हैं सेंटेंस? प्लीज रेज योर हैंड whoever wants to repeat. किशोर भाई। सर जी, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कर्म निष्कर्म होने से कर्म का अंत आ सकता है? अभी उस पर मत जाइए, कर्म का अंत लाने के सब रास्ते आएंगे। अभी मैंने जो क्वेश्चन नहीं पूछा है, मेरे सेंटेंस को रिपीट कर। हाँ, बबीता जी चोपड़ा। साहिब जी, जब तक हम 84 लाख योनि में जन्म मरण करते रहेंगे, जब तक हम चारों गतियों में भ्रमण करते रहेंगे, तब तक हम इस संसार में भ्रमण करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। आपको सेंटेंस सेट करने की जरूर है। आप पहले जो प्रॉपर, यू मस्ट लिसन द प्रॉपर सेंटेंस विथ योर अवेयरनेस एंड देन रिपीट इट। सोनाली बोरा जी। 4 गति में 84 लाख योनि में जन्म मरण करते करते परिभ्रमण होता रहता है, और इसी को अनादि अनंत काल कहते हैं। मतलब अनादि अनंत काल तक परिभ्रमण करते रहेंगे। आपने लास्ट शब्द ही छोड़ दिया, प्राइस कैसे मिलेगा साहब? बरोबर सेट करिए, सेंटेंस सेट करिए, लास्ट शब्द तो आना चाहिए। किसकी बात चल रही है? हाँ, शैला 4 गति में 84 लाख योनियों में जीव अनादि अनंत काल से जन्म मरण करते हुए परिभ्रमण कर रहा है। उसी को संसार कहते हैं। उसी को संसार कहते हैं। पूरा मत छोड़िए ना उसको। चलिए, अब ये बात हमारी समझ में आ गई कि आखिर ऐसा संसार समझे कि नहीं।
आप संसार की दृष्टि से एंगल से देखिए, अब कर्म के एंगल से देखिए, आप ध्यान से समझिए। कारणीभूत निमित्त जब कर्म बनता है तो रिजल्ट संसार है, कारणीभूत निमित्त जब संसार बनेगा तब रिजल्ट कर्म में आएगा। आप समझने की कोशिश करिए दोनों में। जब आप कारणीभूत निमित्त कर्म को ले रहे हैं, अब मैं कर्म कर रहा हूँ, ये जीव ऐसा कर्म कर रहा है, ये जीव ऐसा कर्म कर रहा है, अरे इसने ऐसा किया, अरे ये ऐसा कर रहा है, तो संसार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब रिजल्ट संसार का आने ही वाला है। अब संसार का रिजल्ट आया मतलब क्या हुआ? भव बढ़ गए। संसार बढ़ा मतलब क्या हुआ? भव बढ़ गए। भव बढ़ गए तो क्या हुआ? जन्म मरण बढ़ गए। जन्म मरण हुआ तो क्या हुआ? किसी न किसी 84 में से किसी न किसी योनि में जाके जन्म लेना ही पड़ेगा, और 84 लाख योनि में जाकर अपना शरीर बनाएगा तो किसी न किसी गति में जाकर, अब वहां गया तो जन्म मरण बढ़ गया साहब। अब एक गति में एक बार एक जन्म लिया तो दूसरी गति में, दूसरी में से तीसरी में। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि उसका उत्तर कर्म है, उसका कारणीभूत निमित्त कर्म है। अब इधर देखिए, बिना कर्म के 84 लाख योनि में जा ही नहीं सकते हैं, बिना कर्म के चारों में से किसी भी गति में नहीं जा सकते हो, बिना कर्म के जन्म भी नहीं होता है, बिना कर्म के मरण भी नहीं होता है, बिना कर्म के संसार के चक्र में परिभ्रमण भी नहीं होता है। अब आगे बात समझ में चलो। Who will speak? Repeat all the sentences. कर्म के बिना 4 गति में भ्रमण नहीं है, 84 कर्म के बिना 84 लाख योनि में जन्म मरण नहीं होता है, और कर्म के बिना भव भ्रमण भी नहीं होता है, और कर्म के बिना संसार भी नहीं। चलो धन्यवाद। अब ये जो संसार का चक्र है, ऐसा संसार का चक्र हमको समझना है यहाँ पर, और सबके कारणीभूत रीजन में हमको कर्म समझ। बात कहाँ पर आ रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अब उसकी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। भाई, हु इज द रीजन बिहाइंड दैट? Can you say that only the karma is reason? Otherwise, you can say that there are all the other reasons also. So, what type of reason behind that? Only the karma is reason or not? हम उसकी भी स्टडी करेंगे, हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए साहब। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। मैं यहाँ पर रेगुलर जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर डायग्राम करूंगा, डायग्राम के साथ समझाऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा भी सही। बट बिटवीन दैट आई वांट टू आस्क यू, let me know that you are also understanding the subject or not, and let me know that you are aware about us or not. You see, your awareness is also important, because there are so many students. I am the only alone one, and we are on the Zoom media. How can I understand that you are understanding properly or not? I am explaining it properly or not? If you are not understanding properly, then I will more easier that. Again and again, I will more easy that. Otherwise, there will be no meaning. If it is not coming in your understanding capacity, then there is no meaning of teaching. So I want to contact with each and every person. No doubt she is Elsa, and she is the organizer that. But I should know about that. So ये हमारी मेथड है, ये सिस्टम है. Do you like it or not? अगर आपको अच्छी लगती है, योग्य लगती है, तो आगे वी शुड कंटिन्यू दैट। क्या है, खाली सब्जेक्ट पूरा करना नहीं है हमको, सब्जेक्ट पूरा नहीं करना है। वी शुड डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट, एंड नो डाउट दिस इज कर्म थ्योरी, बट वी विल अंडरस्टैंड विद द लॉजिकल बेस आल्सो। शास्त्र की बात है, आगम का तत्व है, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी का सिद्धांत है, बट वी शुड अंडरस्टैंड विद द लॉजिकल बेस। हमारे लिए बुद्धि गम्य तो बनना ही चाहिए ना। ये नहीं है कि बाबा वाक्यम प्रमाण है। इन दिस कर्म फिलोसॉफी वी विल आल्सो अंडरस्टैंड विद द बेस ऑफ मैथमेटिक्स आल्सो, with the base of philosophy also, with the base of logic also. There are so many other different angles. आज
आज अभी मैं तो जितना लेकर आया था टॉपिक पॉइंट्स मेरे पास बहुत थे, लेकिन अभी सब तो कवर नहीं हो सकता है, लेकिन टाइम की एक लिमिट है, तो समय सीमा हमारी जरूर पूरी होती है। टुडे इज दिस फर्स्ट ओनली इंट्रोडक्शन, the day after tomorrow is Wednesday, again we will take the more introduction for this karma। अभी भाई साहब ने जैसे किशोर जी ने कर्म शब्द की कोई मीनिंग ही अलग कर दिया, कोई और डिफरेंट मीनिंग कर देंगे, कोई और डिफरेंट मीनिंग अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ केवल ज्ञानी भगवान ने हमको कर्म का प्रॉपर मीनिंग क्या बताया है। वी विल स्टडी अबाउट दैट। अब वो भी समझेंगे नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इंटरेस्टिंग होते हुए जरूर डिफिकल्ट और हार्ड तो है ही, लेकिन हमको इजी करके इसको समझना है बहुत। लेकिन मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको कहा कि हमारे लिए एक जीवंत विद्या है। जीवंत विद्या का मतलब क्या हुआ? इट इज इन डेली यूज। कर्म थ्योरी हमारे लिए प्रति क्षण यूज में आने वाली फिलॉसफी है। क्षण क्षण में कदम कदम पर उपयोग में आने वाली कर्म की थ्योरी है, ये हमको समझनी है। टुडे दिस इज द फर्स्ट की, एंड टुडे देयर इज नो स्कोप फॉर एनी डिस्कशन चांस। नेक्स्ट वेडनेसडे को हम जब सेकेंड क्लास लेंगे वी विल डिस्कस, और इसके लिए हम 50 minutes I will give you the lectures, and the last 10 minutes we will take for the question answer discussion. You may ask the question, but my request is this: please ask the question according to the topic, to the subject. Out of the subject, out of the topic, if you will ask something, then will be disturb the class. So my request is to all, you see, हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। एंड टुडेज होमवर्क आप जितना समझे हैं उतना 2 पेज लिखिए। ओनली 2 पेज यू मस्ट राइट डाउन एवरी डे। इफ यू विल डू द होमवर्क टू राइट डाउन ओनली द 2 पेजेस, आई थिंक सो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। तो फिर उसमें से आप क्वेश्चन जरूर करिए, कोई ना नहीं है, आते रहेंगे, आगे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, आप क्वेश्चन आंसर होंगे ही होंगे, तो ज्यादा बेटर होगा कि आपको क्लैरिफिकेशन होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद आपको, खुशी से आज की क्लास हम यहाँ पर हो गया, टाइम हो गया जी साहिब जी। नमो सिद्धार्थ नमो एरियानम नमो वैष्णवाय नमो लोहे सर्वसाहुनम एक पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंसा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतं जयति सार्थकम्। धर्मलाल सबको